Namaste and a very good morning to everyone. Welcome to today's morning assembly. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat krupatamaham vande પરમાનંદ માધવમ. જેની કૃપાથી મૂંગો બોલતો થાય છે અને અપંગ પર્વતો ઓળંગે છે તે પરમાનંદ માધવ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને હું વંદન કરું છું. Let us all together surrender ourselves to this divine power we all know is God. I request everyone to get ready for the morning prayers. जहाँ ज्ञान है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं. आज की हमारी प्रार्थना है गजानना, उस विद्या के देव, उस ज्ञान के देव को समर्पित है. और इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा मस्तिष्क कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसमें हम व्यर्थ बातें जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का उसमें समावेश करें, परंतु हमारा मस्तिष्क ऐसी जगह है कि जिसमें हम मान, सम्मान, विद्या और ज्ञान, विज्ञान का उसमें समावेश करें, सद्भावना का उसमें समावेश करें. आइए उस प्रथमेश्वरा को हम प्रार्थना करें कि हमारे मन को ज्ञान से भर दे, विद्या से भर दे.
question. How do you measure success in life? The most common answers we get will be by how much money a person makes, or by how famous a person is, or where does your balance sheet stand? Really, take a minute to think about your answers. Till then, listen to my friend Nitya Hapani's story to get the correct answer. Namaste. My name is Nitya Hapani and I am from 5th grade. Today, I am going to narrate a short story about a young athletic boy, just like me, fond of success and his life lesson. Once upon a time, there was a young athletic boy, hungry for success, for whom winning was everything and success was measured just by winning. One day, he participated in a running competition in a small village. A huge crowd had gathered to witness this sporting spectacle. A wise old man, upon hearing of the little boy, had also come there to bear witness. The race commenced, and because of the boy's determination and power, he managed to finish the first. While the crowd cheered and waved at the boy, the wise old man remained still and calm, expressing no sentiment. The boy, however, felt proud and important. A second race was soon conducted, and sure enough, our little champ managed to finish first once again. Whilst the crowd cheered and waved at the boy, the wise old man held up a mask-like face. Beginning to feel important, the boy pleaded for one more race. This time, the wise old man presented him with two new challengers, an elderly frail lady and a blind man. Looking at the boy's perplexed face, the wise old man urged him to run this strange kind of race. The boy thought for a while, and then the race commenced. And as was expected, the boy was the only finisher, while the rest of them could barely manage to cross the starting line. The boy was happy with himself, but this time the cheering from the crowd was missing, and everyone's face was expressionless. Looking at the boy's confused face, the wise old man advised him to race once again, but this time all three of them were supposed to finish together, replied the wise old man. The boy thought for a while, stood in between of the elderly frail lady and the blind man, and the race ensued. And the boy walked slowly, ever so slowly, and helped the other two competitors touch the finishing line. The crowd was ecstatic and waved their arms in delight. The wise old man smiled gently and replied, "Little boy, for this race you have won much more than in any other race you have ever run before." The story ends here and our introspection starts. In our life, what are we running for? Are we hungry for success? Is winning the only measurement in our life? Whom are we running against? Are we hungry for success? And if we will always win, then soon the crowd will stop cheering for us. So let's run this race called life. And it is not important whether we win or lose. The main point is on how we run this race. Thank you. शास्त्रों में कहा गया है कि आरंभ से समय को 4 युगों में बांट दिया गया है। फिलहाल हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। अगर कलयुग खड़ा हो जाए परम ब्रह्मा के सामने और उन्हें ललकारने लगे, तब परम पिता परमात्मा क्या कहेंगे? आइए सुनते हैं मेरे मित्र ब्रह्म से। नमस्ते, मैं ब्रह्म मांगरोलिया कक्षा 6 का विद्यार्थी आज एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसमें कलयुग और परब्रह्म के बीच में संवाद हो रहा है। कलयुग कहता है कि
अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अब कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण की तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं रावण की तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। मैं जगत का हूँ अधिष्ठा, मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूँ, बात तुम ये जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरे पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे भक्त भी मेरे पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। मारना चाहो मुझे तो पहले इनको मार दो, युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से तुम रार लो। ये तुम्हारे भक्त भी अब घूर विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाशका का रण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था वो कब का छल से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं तुम्हारी हद करूंगा बस्ती में सबके सामने। रावण कंस दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे नीरे ही मूर्ख थे बस जिद पकड़ना जानते थे। मैं नहीं वैसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा ही होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूँ मैं इन मानवों के वेश को। मैंने सुना था कि तुम इन्हीं के देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते। तुम इन्हीं के आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। अब मनुष्य के आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य के तन का हर एक राम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, नष्ट करना चाहो मुझे तो पहले इनका नाश हो। तुम बहुत ही धर्म रक्षक सत्यवेदी शिष्ट थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। बच सको तो खुद बचो अपने भक्तों से, संभालो जान को, बन सको तो खुद बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर के सच सवर के घूमता, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता। अब नहीं है निंदनीय चोर डकैती और हरण, अब है अभिनंदनीय सब झूठ हत्या और दमन। मैं कली हूँ आचरण मेरे तुरंत धरण करो, अन्यथा उपकीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। पर ब्रह्मा मुस्कुराते हुए ये सब सुनते रहे और कहने लगे कि तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन गूंजता रहा, है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत के वास्ते, चाहता तू बंद कर देना सभी के सारे रास्ते। मुझको चुनौती देके तू भगवान होना चाहता है, मुझको चुनौती देके तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू पर ज्ञान होना चाहता है। तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का, तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं अब को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू नहीं कुछ भी कली इस सत्य को तू जान ले, है नहीं कुछ भी बस में तेरी, मेरी बात तू ये मान ले। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन कल वो जो दुख पहुंचाएगा। कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा कल तो उसकी बेकारी है। कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तू एक कल्पना है, तुझमें जीवन का सत्य नहीं। कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज बताता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सत्युग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूँ। आनंद मग्न जब होता हूँ तब शिव शंभु कहलाता हूँ। और जब प्रलय तांडव नृत्य करूँ तब महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव का डमरू, मैं ही वंशीधर का गान, मैं ही महादेव का डमरू, मैं ही वंशीधर का गान। मैं ही श्री राम का वर्षा, मैं ही श्री राम का बाण। और तू रावण का गोलाहल है और कंस का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजयनाद हूँ, मनुष्य की जय जयकार।
मैं ही खटपट, मैं ही चटपट, मैं ही मंदिर मस्जिद का पट, मैं ही इस घट, मैं ही उस घट, मैं ही पनहारीन और पनघट। धर्म मैं हूँ, कर्म भी मैं हूँ, इस जीवन का सब धर्म भी मैं हूँ, जीवन के इस पार भी मैं हूँ, जीवन के उस पार भी मैं हूँ, जीवन के उपदेश भी मैं हूँ, जीवन का उपकार भी मैं हूँ। तन भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, इस जीवन का धन भी मैं हूँ, आन भी मैं हूँ, बान भी मैं हूँ, इस जीवन की शान भी मैं हूँ, जीत भी मैं हूँ, हार भी मैं हूँ, इस जीवन का सार भी मैं हूँ। तू पार ना मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सख्त धर्मों के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली विचलित बोला, मैं दम दमादम मदम नीच में बड़ा हुआ कीचड़ के बीच। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो, यह अंतिश है काली का स्वामी, तुम धीरे धीरे साफ करो। धन्यवाद। नामो राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु, जो सिमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। यह तुलसीदास जी का दोहा बतलाता है कि राम नाम इतना बलवान है कि ये किसी भी पत्थर को तैरा सकता है, पहाड़ को हिला सकता है और किसी भी दूषित विचारों से भरे मन को पवित्र बना सकता है। भगवान राम की महिमा अपरंपार है। इन्हीं विचारों को कविता के माध्यम से दर्शाने आ रहे हैं नित्य गणात्रा। भगवान श्री राम हमारे आस्था के प्रतीक है, जो हमारे अंतर्मन में और समग्र सृष्टि में एक दिव्य ज्योति की तरह विद्यमान है। भगवान श्री राम केवल कोई जाति या फिर धर्म के नहीं, परंतु समग्र मानव जाति के हैं। लेकिन जब कोई हमारे इस श्रद्धा केंद्र को मात्र एक कल्पना का नाम देते हैं, तब कवि की कलम नहीं रुकती और वह भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रमाण देकर इस विभूति के प्रति हमारी श्रद्धा एवं विश्वास को पुनः प्रस्थापित करते हैं। तो प्रस्तुत है सांप्रत काल के युवा कवि श्री कमलेश्वर माझी द्वारा रचित कविता राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे है रोम रोम में, चंद सिर फिरो को समझाने क्या हम अपने प्राण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है। सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय वट। चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक बन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंद गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरे लाता, दिया राम को वचन निभाता। वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे ये भौतिक प्रमाण है सारे। जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनुबाण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे जहाँ चाह है, ऋषि मूंग पर्वत गवाह है। राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में। जिसके बड़ा दिन कटे भरत के, जिसके बड़ा दिन कटे भरत के,
लाकर क्या पद त्राण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष स्थल हित धनुषायक थे। राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के। राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के। उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के। राम इष्ट है दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है। वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है। लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है। उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः पयान दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं। राम उन्हें लगते झूठे हैं, झुटलाते राम के मर्म को। घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है। सब के सब हरिहर द्रोही है। जो कर रहे हैं राम की निंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा। झुटलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धन्यवाद। One day, a child asked his father, "Father, why do we stand up for the national anthem?" His father replied, "We stand because many never stood up again for us to stand." I would like to request all of you to rise up for the national anthem. Assembly Savdhan. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Teachers encourage minds to think, hands to create, and hearts to love. They motivate us to do something good in life. I would like to call upon Shivram sir to share today's point to Socho and motivate us to make a better tomorrow. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। नमस्ते। हैप्पी दिवाली कहने का वक्त आ गया है और ये माहौल होता है खुशियों का। बेवजह ही खुश रहने को जी चाहता है और खुशियों के लिए हम अक्सर पुरानी चीजें छोड़ देते हैं और नई चीजें ले लेते हैं। नई घड़ी, नया वक्त, नया बंगलो, किसी के लिए अगर नया बंगलो ना हो तो नया रंग, और नई दुनिया बसाना चाहते हैं हम। नए कपड़े, नई जगह पे वेकेशंस, नए लोगों से मिलना और नई पिक्चरें देखना। तो स्टार प्लस से मैंने कुछ सीखा कि रिश्ता वही सोच नहीं। हम दिवाली हर साल मनाते हैं और हैप्पी दिवाली कहते हैं। क्यों ना एक नई सोच के साथ हैप्पियर दिवाली कहें इस साल।
भला हैप्पियर कैसे बनाया जाए? जब हम अपने बिजनेस गोल्स भी रखते हैं, अगर 50 करोड़ का टर्नओवर था पिछले साल, तो इस साल हम 100 करोड़ करना चाहते हैं। तो खुशियों के मामले में भी हम अपनी खुशियां बढ़ाना चाहेंगे। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, बेटा खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। तो खुशियां कैसे बांटे? सोचते हैं कि राम जी अगर 14 साल के वनवास के बाद घर आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से हम उनका स्वागत कर सकते हैं? बड़े बड़े बम पटाखे फोड़कर, या सिर्फ दिए जलाकर, या खुशियां सिर्फ यूं ही बांटकर? ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है खुशियों के लिए। लोग ढूंढते हैं अक्सर स्विट्जरलैंड में खुशियां, लेकिन खुशियां अपने परिवार के साथ ही है। मगर आजकल ये होता है, छोटे शहरों में लोग अक्सर सब एक साथ मिलते हैं और बड़े शहर के लोग भाग जाते हैं वेकेशंस मनाने के लिए। नहीं, अपने परिवार के साथ दिवाली मनाइए, और जिन लोगों के साथ, जिन दोस्तों के साथ आपने बड़े लंबे समय से बात नहीं किए, फोन उठाइए और अपना प्यार जताइए उनको, क्योंकि खुशियां छोटी छोटी चीजों में बसती है। मैंने एक बड़ी सीख सीखी है एक छोटे से बच्चे से, HP प्रिंटर के एडवर्टीजमेंट में से, जहां वो बच्चा प्रिंट आउट निकाल के दिए बेचने वाली अम्मा का बिजनेस रातों रात सफल बना देता है। क्यों? क्योंकि उस दिए को अम्मा के दिए का दर्द महसूस था कि वो दिए बिक नहीं रहे थे। तो चाहे वो बाबा का ढाबा हो, चाहे वो दिए बेचने वाली कोई अम्मा हो, किसी का भी दर्द जब देख के तुम्हारी आंख में आंसू आए या कुछ करने को जी चाहे, तभी समझना कि हम हैप्पियर दिवाली मना सकते हैं इस साल। तो देखकर दर्द किसी का जब आह निकल आती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। ह्यूमन बीइंग हम सब हैं, मगर बीइंग ह्यूमन हमारा कर्तव्य है। आइए इस दिवाली एक उम्मीद का दिया रोशन करें और किसी और की दिवाली को हैप्पी दिवाली बनाएं। तभी सही मायनों में हमारी दिवाली हैप्पी से हैप्पियर बन सकती है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल वंस अगेन। Most of the important things in the world have been accomplished by the people who have kept trying when there seemed to be no hope. So, never quit and keep trying until you achieve your ultimate goal. Thank you. સુખ કરતા દુઃખ હરતા વાર્તા વિઘ્નાચી ગજાનન ગણપતિની આ સુંદર સ્તુતિ મરાઠી ભાષામાં છે, પરંતુ આખા ભારતમાં પછી ગુજરાત હોય, મહારાષ્ટ્ર હોય, રાજસ્થાન હોય કે પંજાબ હોય, કોઈ પણ પ્રાંતમાં આ સ્તુતિ એટલી જ પ્રચલિત છે અને ગજાનન ગણપતિને યાદ કરવા માટે આ સ્તુતિને જરૂરથી વગાડવામાં આવે છે. તો આવો બધા મળીને ગજાનન ગણપતિને આરાધીએ આ સ્તુતિ દ્વારા. जय देव जय देव जय देव जय देव, सुख हरता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची. जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव. खचिता फरा तुझको कुमरा, चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा, हिरे जडिता मुकुट शोभा तो बरा, रुंजुंती नुपुरे चरणी घागरिया. जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना, सरसोंड वक्रतुंड त्रिनयना, दास रामाच्या वाट आहे सगना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना.